Hello, good morning, fourth years. Today we'll see the screening and assessment of high risk pregnancy. High risk pregnancy मैंने पहले ही बता दिया था what is high risk pregnancy. And today we'll see the how we'll assess this high risk cases or high risk pregnant women or high risk cases, and for what is screening and how we'll do the screening by assessing this patient. Understand? So we'll see our topic is screening and assessment of high risk pregnancy. A pregnancy which at a risk for serious complication is considered to a high risk pregnancy. समझ में आया? A risk, sorry, a cases, or we can say a complication or a sign symptom or a disease which consider high risk, जो आगे चल के pregnancy में problem create कर सकता है. This type of diseases will call the high risk pregnancy. All pregnancy should be evaluated to determine whether there are or be risk factor. Classifying a pregnancy as a high risk helps in ensure that it receive extra attention. Screening options are available to provide a risk assessment for a specific birth defect or any type of mother's problem or pregnancy induced by the mothers. So this was all about the high risk and the screening. First, we'll see the definition of high risk pregnancy. High risk pregnancy is a broadly defined as pregnancy in which there is or will be increased risk for mortality of mother, fetus, neonate before or after the delivery. सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही कंसाइज डेफिनेशन है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ डेथ, इंक्रीज चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी इन द मदर में, फीटस में और न्यूनेट्स में, बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, दोनों ही कंडीशंस में, बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले या आफ्टर डिलीवरी, इफ देयर इज एनी चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द मदर और द फीटस, दैट इज कॉल्ड द हाई रिस्क प्रेगनेंसी. Understand? This is the high definition of high risk pregnancy. Next we'll see the screening. What is screening? Screening is a process of identifying apparently healthy people who may be at increased risk of disease or condition. They can be offered information, further test, appropriate treatment to reduce their risk or any complication arising from the disease or the condition. This is a आप सब जानते हैं व्हाट इज़ स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें भी आइडेंटिफाई हम चेक करते हैं हेल्दी पीपल को भी, अनहेल्दी पीपल को भी. स्क्रीनिंग के प्रोसेस से हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर she is suffering or whether we collect the information or we offer them any type of test treatment कि अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप ये इन्वेस्टिगेशंस कीजिए, ये ट्रीटमेंट लीजिए. दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग. जैसे नाउ डेज वी आर डूइंग स्क्रीनिंग ऑफ COVID-19, तो दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग. अंडरस्टैंड? Next we'll see the assessment of high risk pregnancy. How we will assess that कि ये high risk pregnancy है. See, first we'll do the obstetrical history. Most important process, or we can say the most important step is history collection. By the collection of history you will be very easily reveal the high risk cases of the women. easily आप पकड़ पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे कि ये वुमेन जो है वो हाई रिस्क केसेस में है. तो वो आप हिस्ट्री से ही, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई दी हाई रिस्क केसेस. फर्स्ट विल आस्क द पेशेंट अबाउट द प्रीवियस स्टिल बर्थ. हम जैसे ही वुमेन आती है तो वी विल आस्क अबाउट दी इज़ देयर वर एनी स्टिल बर्थ, पहले कोई आपका स्टिल बर्थ हुआ है. स्टिल बर्थ मीन्स, now this is your task, very easy, very simple things I'm asking today is stillbirth. Previous, अगर उसको previous stillbirth हुआ है तो we'll ask about the previous stillbirth. Previous neonatal death, अगर पहले neonatal death means बच्चा पैदा, neonate means जब बच्चा आता है
of 24 days, that we call the neonate. और अगर but that death will occur after, just after delivery, that we call the neonatal death. अगर किसी मदर का ऐसा हुआ है तो अगर ऐसी हिस्ट्री है तो there is a high chance of high risk cases. Next we'll ask the previous premature infant. इफ़ देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर इन्फेंट, अगर कोई बेबी है जो बिफोर 36 वीक्स और बिफोर मैचुरेशन, मैचुरेशन कब होता है? आफ्टर द 38 वीक्स मदर इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर द डिलीवरी, मीन्स बेबी मैच्योर हो चुका होता है और 38 वीक्स कंप्लीट होते ही, ठीक है। एंड बिफोर 36 और वीक्स और 38 वीक्स, अगर बिफोर दिस बेबी डिलीवर्ड होता है, दैट वी कॉल द प्री मैच्योर इन्फेंट, अंडरस्टैंड। मतलब बच्चा अच्छे से मैच्योर ही नहीं हुआ है। तो इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ केसेस, दैट मदर वुड बी इन दी हाई रिस्क केसेस. Next, we'll ask about the history of recurrent abortion. If there is any type of history of recurrent abortion, we'll ask because if अगर पहले abortion हुआ है तो there is a high risk cases, high risk chance to get again the abortion. Okay. Next, we'll ask about the fetal blood transfusion for hemolytic. Is there any fetal blood transfusion? कुछ हुआ है ऐसा hemolytic disease type का जिसमें fetal blood transfusion हुआ है? Why we are asking this? You will one day you will be taught the that what we call RH incompatibility. I'll teach you RH incompatibility क्या होती है, और उसमें you will be clearly able to know कि how the blood cells itself destroy the new coming baby in the mother's womb. एक जो बच्चा का सेल होता है, RH incompatibility is a case in which अगर किसी कोई मदर बी नेगेटिव है, नॉट ओनली बी, अगर हर ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव, तो शी विल बी चांसेस टू get the RH incompatibility. Understand? In this, what will happen? The first baby will be come out very healthy, not an issue, but she cannot conceive again बिकॉज जो भी ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है उसके वॉर्म में, दैट ब्लड दैट RBC डिस्ट्रॉय द कमिंग बेबी. जो कमिंग बेबी होता है, सेकेंड बेबी, उसके जाइगोट्स उसको बनने ही नहीं देते, उसके बेबी बनने नहीं मिलता है उसको. उसका सैक तो बन जाता है बट बेबी के नॉट ग्रो, बेबी के नॉट डेवलप, तो सेकेंड बेबी उसका नहीं हो पाता है. दिस इज कॉल्ड द RH इनकम्पैटिबिलिटी. Next is medical history of mother reveal. We'll ask about the any type of medical history if mother is revealing कुछ है उसको किसी टाइप का medical history है, तो we'll ask about the medical history of mother like maternal illness, chronic hypertension. mother को बहुत समय से अगर किसी प्रकार का हाइपरटेंशन है तो विल आस्क अबाउट द क्रोनिक हाइपरटेंशन, विल आस्क अबाउट द इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़, विल आस्क अबाउट एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स, रीनल डिजीज़, मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, विल आस्क अबाउट दिस. अगर मदर को ये पहले से है तो इट वुड बी इन दी हाई रिस्क केसेस. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट विल आस्क अबाउट दी मैटरनल फिजिकल रिस्क फैक्टर. जैसे मदर को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो इट वुड बी इन रिस्क, तो ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स होंगे. फर्स्ट विल सी द इनकम्पिटेंट सर्विक्स. सी सर्विक्स प्ले ए मेजर रोल. आप सर्विक्स के रोल आप जब लेबर पढ़ेंगे ना, तब यू विल गेट द मेजर रोल ऑफ द सर्विक्स. सर्विक इज द मेन पार्ट विच प्ले major role for delivery of the baby. See, baby, let me use my pencil. See, this is the uterus and this is the cervix. This is cervix and baby is here. Baby is coming out here. It is pelvis. Baby is coming out. This pelvis will open, contract and relax, contract and relax, contract and relax, then baby will come out. अगर ये pelvis जो है, सॉरी ये cervix जो है, अगर proper contraction relaxation नहीं होता है तो baby will not be able to come out.
अंडरस्टैंड, इसलिए सर्विक्स प्ले मेजर रोल। इसलिए इफ़ देर इज़ इनकम्पिटेंट सर्विक्स, अगर सर्विक्स इनकम्पिटेंट है, प्रॉपर मोबाइल नहीं है, प्रॉपर नॉट कोऑपरेटिंग सर्विक्स, तो इट इज़ ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, अंडरस्टैंड। और लेबर प्रोसेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ देर इज़ इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इसलिए इट इज़ वी आर टेलिंग दैट कि मैटरनल फिजिकल, दिस ऑल अबाउट द मैटरनल फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर मदर को इस टाइप की फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो विल शी विल नॉट बी कोऑपरेटिव ड्यूरिंग दी delivery process. Next we'll see the uterine malformation. See, if there is a malformation in the uterus, मैंने आपको बताया कि दिस इज यूट्रस, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ माल फॉर्मेशन, जैसे बॉडी ऑफ द यूट्रस विल नॉट बी परफेक्ट। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यहाँ पर कहीं फाइब्रॉइड है, तो ये पॉसिबल है कि बेबी प्रॉपर वहाँ पे ग्रो कर पाएगा। अगर यहाँ पर ट्यूमर है, एनी टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, तो क्या बेबी वहाँ पर प्रॉपर ग्रो कर पाएगा? अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इज देयर इज एनी फाइब्रॉइड इज देयर फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या वहाँ पर जाइगोट बन के जाइगोट मूव करके यहाँ आ पाएगा? नो, नॉट एट ऑल। तो देयर इज ए यूट्राइन माल, दिस इज कॉल्ड द यूट्राइन माल फॉर्मेशन। नेक्स्ट विल सी दी रिस्क फैक्टर इन करेंट प्रेगनेंसी। अगर करेंट प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है, जैसे सीवियर प्री एक्लेम्शिया होता है, हाउ विल अंडरस्टैंड द प्री एक्लेम्शिया, मैंने आप लोग को 1 डे और 2 days बिफोर मैंने बताया था साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्शिया। इफ देर इज मदर इज having the high blood pressure, अगर मदर continuously complaining of high BP and blood vision or any type of fits, convulsion, then these are the symptoms of preeclampsia. तो this is a very severe condition in which the mother can be in a very complicated situation, जिसमें बेबी को भी और मदर दोनों को ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट मदर कैन हैव। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमनियास एंड ओलिगोहाइड्रोमनियास। मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास मीन्स दिस इज द यूट्रस ऑफ द मदर, or in which this is baby is situated over here and either fluids are there, fluids रहते हैं यहाँ पर। if this fluids, this amniotic fluid is higher than the normal, and when this amniotic fluid is lower than the normal, is called the oligohydramnios. If there is a higher than the normal, that will call the polyhydramnios. Poly means ज़्यादा and hydramnios is that fluid. or oligo is means come, and this hydramnios meaning is fluid, understand? Polyhydramnios, and how polyhydramnios and oligohydramnios will be difficulty, create difficulties. See what will happen if अगर ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पर है, तो बेबी विल नॉट गेट सफिशिएंट स्पेस टू ग्रो टू डेवलप, अंडरस्टैंड? or if there is oligohydramnios, then there is also a very less chance to proper development of the baby. See, this is baby and this is uterus, and there is a very less amount of fluid is there, और fluid ही एक ऐसा जरिया है जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और अगर फ्लूइड से नहीं होगा तो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? और फ्लूइड्स ही एक ऐसा बैरियर है जो बेबी को सेफ रखता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जर्क, एनी टाइप ऑफ नॉइस पोल्यूशन, हर टाइप के डिफ़िकल्टी से। जो ये सीधा एब्डोमेन के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद देयर इज़ अ फ्लूइड विच इज़ प्रिवेंटिंग द बेबी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जर्क, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा नॉइस साउंड। तो सब चीज़ से बेबी प्रिवेंटेड है, प्रोटेक्टेड है। अगर यही हाइड्रोमनियास, यही फ्लूइड कम हुआ तो बेबी विल नॉट बी able to be protected by herself, understand? So this is called the polyhydramnios and oligohydramnios. Next is placenta previa and multiple pregnancy. First we'll see the placenta previa. See, in normal situation what will happen, this is the abdomen, understand? This is abdomen and this is baby, and placenta normally it is situated over here. Let me use broad pencil, understand? Placenta always be here
in upper direction, in upper side, understand, and baby is situated over here. And what will happen, sometimes this placenta and here is cervix, understand, from here baby will come out, this is cervix. And what will happen, sometimes these placenta is situated over here in the lower pole. लोअर पोल मीन्स जहाँ पर सर्विक्स है, जहाँ से बेबी को आउट होना है, कभी कभार प्लेसेंटा यहाँ पे सिचुएटेड हो जाता है। तो आप खुद इमेजिन करो, अगर प्लेसेंटा यहाँ पर सिचुएटेड हो गया तो क्या होगा। व्हाट इज प्लेसेंटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो। प्लेसेंटा इतना बड़ा प्लेसेंटा है और इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पोल। इन कभी भी मदर को लीकेज प्रॉब्लम हो सकती, कभी भी मदर को APH मीन्स लीकेज लाइक ब्लड स्पॉट्स मिल सकते हैं, मदर को कभी भी प्लेसेंटा आउट हो सकता है। तो देयर इज ए हाई रिस्क केसेस, अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ सिचुएटेड है, प्रीविया का मीन्स होता है पहले। अगर ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर प्लेसेंटा इज कमिंग फर्स्ट, पहले आ रहा है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा प्रीविया आप जैसे ही आपका सोनोग्राफी होता है तो यू विल गेट दी योर रिजल्ट कि प्लेसेंटा इज सिचुएटेड इन दी लोअर पोल। तो दिस इज द हाई रिस्क केसेस। इन दिस केसेस यू विल नेवर एवर गो टू द नॉर्मल डिलीवरी, हमेशा आपको सिजेरियन ही करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट नेक्स्ट विल सी मल्टीपल प्रेगनेंसी। सी in this uterus there is one baby is situated over here and growing very normally. Up now if you will let me show you image. See, in this situation what is happening over here, see, this is the uterus, understand, and if there would be one baby, one fetus, it can grow very normally, understand, because he or she will get the sufficient space to develop and to grow. और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, मल्टीपल बेबीज हैं, 2 बेबीज हैं, 3 बेबीज हैं, तो देर इज नॉट सफिशिएंट स्पेस टू ग्रो अप, अंडरस्टैंड, एंड प्लेसेंटा, दिस प्लेसेंटा विल गिविंग दी नरिशमेंट और diet to the baby. So how see, one placenta is here and it is circulating the nutrients to everyone, understand. तो is there क्या ये पॉसिबल है कि उतना ही न्यूट्रिएंट सबको मिल पाएगा। मीन्स अगर एक बेबी रहता है तो वी कैन नरिश वेरी प्रॉपरली, अंडरस्टैंड, मोर कंपेयर टू मोर देन 1 or 2 or 3। सो दिस इज द मल्टीपल प्रेगनेंसीज कंडीशन जिसमें मदर प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी को नहीं दे पाती है। मॉडरेट टू सीवियर प्री एक्लेम्पसिया मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉलीहाइड्रोमिया, ओलिगोहाइड्रोमिया डिस्कस्ड ऑलरेडी। प्लेसेंटा प्रीविया, मल्टीपल प्रेगनेंसीज डिस्कस्ड। नेक्स्ट विल सी द कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। What complication will come in the pregnancy if we'll have these cases, these high risk cases। तो क्या क्या complications आ सकते हैं। फर्स्ट विल सी द पेशेंट हैविंग नो एंटीनेटल केयर। अगर कोई वुमन ऐसी है जिसने during entire 9 month pregnancy she have never ever taken any antenatal care, any antenatal care services, that mother will be the more complicated, understand, क्योंकि nowadays government have given many services, many antenatal services, बहुत सारे vaccinations हैं, iron folic acid tablets है, diets is there और various health schemes is there। तो देर इज़ ए वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट्स फॉर द एंटीनेटल वुमेन। और अगर वुमेन ये एंटीनेटल केयर सर्विसेज नहीं प्रॉपर यूज़ की है और या फिर एंटीनेटल विजिट के लिए वो कभी गई ही नहीं है तो इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर हर। नेक्स्ट इज एनीमिया एंड प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। एंड हाउ एनीमिया इज ए बिग, अगर मदर ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड एनीमिया को ट्रीट नहीं किया है तो ड्यूरिंग दी डिलीवरी इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द मदर, इवन फॉर बेबी, क्योंकि ब्लड लॉस होता है, आप कुछ भी कर लो ब्लड लॉस होगा। इफ अ मदर इज कमिंग इन द एनीमिक कंडीशन एंड लेटर ऑन शी विल बी गो इन दी शॉक और अल्टीमेटली इट वुड बी द डेथ, ठीक है। तो दिस इज दी कंडीशन ऑफ एनीमिया। अगर एनीमिया हो गया है वुमेन को तो उसको ट्रीट करना है। प्री एक्लेम्पसिया,
प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया का केस मैंने सेम आपको डिस्कस किया था। अगर प्री एक्लेम्शिया है और एक्लेम्शिया है तो उसको उसी टाइम पे एंटीनेटल केयर के टाइम पे ही सबसाइड कर लो, नहीं तो ड्यूरिंग दी डिलीवरी इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So this is the main complication, major complication of pregnancy. Next is amnionitis. Amnionitis means the inflammation of amnion. Amniotic fluid is under the amnion is a layer of surrounding, we can say the surrounding of amniotic fluid. Amnion is a layer. If there is inflammation of this amnion, it would be problematic situation. So amniotic fluids infected हो जाएगा. It can come out anytime. A leakage can be happen anytime. Understand? So this is called the amnionitis. Next is meconium stained liquor. See, meconium, first of all you need to understand the what is meconium. Meconium is the first tool ऑफ द बेबी. आप सब जानते हैं, यहाँ थर्ड ईयर्स में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं. मेकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी. और अगर मेकोनियम स्टेन लाइकर होता है, इफ दैट लाइकर, सी एमनियोटिक फ्लूइड को हम लाइकर भी बोलते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है. अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मिलता है तो दिस इज द वेरी पॉइजनिक कंडीशन और वेरी सफोकेटिंग कंडीशन फॉर दी बेबी और द फीटस. क्योंकि अगर मेकोनियम फ्रेश, अगर लाइकर फ्रेश नहीं है, इन्फेक्टेड है, मेकोनियम इज इन्फेक्टेड थिंग, अगर मेकोनियम हो गया है बेबी को तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है लाइकर. और दिस सिचुएशन इज़ वेरी पॉइजनस, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द फीटस. क्योंकि बेबी को फिर उस टाइम पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, सफोकेशन होगा बेबी और आगे चल के उसको डेथ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन और पोजिशन. इफ द बेबीज प्रेजेंटेशन और पोजिशन इज एबनॉर्मल. नॉर्मल प्रेजेंटेशन पोजिशन मैंने आपको बता चुकी हूँ. इफ बेबी इज इन द transverse position, so this is the abnormal presentation, abnormal position. Understand? If the baby is situated in longitudinal position, there is a bridge presentation. baby का अगर feet नीचे है, buttocks नीचे है और head ऊपर है, this is called the bridge presentation. तो this is the abnormal presentation जिसमें baby का हम normal delivery is quite impossible. Next is multiple pregnancy. एक से ज़्यादा बेबीज हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन. प्री मैच्योर लेबर, अगर 36 वीक से पहले, 38 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, लेबर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड दी प्री मैच्योर लेबर. प्री मैच्योर लेबर कब होता है? जब लाइकर, जब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज शुरू हो जाता है बिफोर द टाइम, बिफोर द 36 वीक्स ऑफ दैट पीरियड, तो दिस इज कॉल्ड दी प्री मैच्योर लेबर. एबनॉर्मल फीटर हार्ट रेट, अगर बेबी का हार्ट रेट एबनॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल फीटर हार्ट रेट नहीं सुनाई दे रहा है, 140/60 से ज़्यादा या कम हो रहा है, तो दिस इज एबनॉर्मल फीटर हार्ट रेट. रप्चर यूट्रस, अगर यूट्रस कहीं से रप्चर हो चुका है तो बेबी इज़ नॉट एट ऑल सेफ. एनी टाइम लीकेज होके बेबी प्रीमैच्योर बेबीज आ सकता है, तो दिस इज दी कॉल रप्चर यूट्रस. Complication in pregnancy, complication during the labor at a high risk, need general anesthesia. अगर complications लेबर के टाइम पे दिख रहा है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है. उस टाइम पे मदर को सीधे जनरल एनेस्थीसिया देके आइदर वी कैन डू दी फॉरसेप डिलीवरी कर सकते हैं ब्रिज के लिए, या फिर अगर फॉरसेप भी फेल हो रहा है तो फटाफट हमको LSCS के लिए देना है. और सम टाइम व्हाट विल हैपन, दी PPH, दैट कंडीशन, प्लेसेंटा विल रिटेन इनसाइड. कभी कभार प्लेसेंटा आउट नहीं हो पाता है, अंदर ही रह जाता है. दैट कंडीशन विल कॉल दी PPH. पोस्टपार्टम हैमरेज, कंटिन्यू हैमरेज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम दी सर्विक्स, तो उस टाइम पे मदर को रिटेन प्लेसेंटा का प्रॉब्लम्स होता है. ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है आफ्टर डिलीवरी, तो फिर प्लेसेंटा को निकालना पड़ता है. तो दिस इज दी complication of the pregnancy. So this was all the major complications in high risk of pregnancy. And next we'll see the how assessment in high risk, how we'll assess the high risk cases. अगर इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसमें जो भी सिम्टम्स दिखते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, उनको अर्लियर हमको ट्रीट करना है. देन विल डू द ट्रीटमेंट. एंड हियर विल सी द असेसमेंट इन हाई रिस्क केसेस.